Welcome everybody. Today we are going to start a new chapter of class 8, that is chapter 6, combustion and flame. So we'll discuss this chapter in two sessions. So this is session 1 of this chapter. In this session we'll discuss what is combustion, combustible and non-combustible substances, ignition temperature, inflammable substances, and things necessary for combustion to take place. Measures to control fire. So let us start with the topic combustion. What is combustion? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light. So, for combustion, what is required? Oxygen is required and it always releases heat. But it may or may not release light. Okay? So, heat is given off in all the cases of combustion, but light may or may not be given off. Okay? The burning of wood is an example of combustion. Now we'll discuss what are combustible and non-combustible substances. Substances which easily catch fire are called combustible substances. For example, paper, coal, wood. So these things catch fire very easily. Okay? Now, substances which do not catch fire readily are non-combustible substances like sand, water, glass. So, they will never catch fire. So, they are non-combustible substances. So, here we will discuss the fuel or the combustible substances. The combustible substances which catches fire easily are also called fuel, and we use different types of fuel for different purposes. Okay. Any material that undergoes combustion is called a combustible substance. It is also called as fuel. Some examples of fuels are petrol, diesel, wood, coal, etc. The fuel may be in solid, liquid or gas state. For example, solid is wood, liquid is your petrol, kerosene, diesel, gas is your natural gas. Okay, so it may be in any form. Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. So here in this diagram, you can see the wood are taken as the combustible substance. Here the wood has catched fire and it burns with producing the flame. Okay. So, but sometimes what happens, suppose you take coal, then coal may burn or it may glow. Okay. So, but there are certain substances which may or may not release light, produce light, but they will definitely produce some amount of heat. Now, what is ignition temperature? This is very, very important. It is the minimum temperature at which any material catches fire. You know that for different materials we require different temperature to catch the substance fire. Okay. For example, if I'll take a burning matchstick near petrol, and if I'll take the burning matchstick near a pepper, then which one will catch fire easily and very easily? Which substance will catch the fire? Definitely it is petrol. Okay.
So this is the temperature at which the substance catch fire is called ignition temperature, and that temperature is the minimum temperature. Okay, so if the temperature of combustible substance is lower than the ignition temperature, then the substance will not burn. Okay, so मान लो किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए हमको जितना टेम्परेचर चाहिए उससे कम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, दैट सब्सटेंस विल नेवर बर्न. ओके, फॉर एग्जांपल, cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove. आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब खाना पकाती है, मान लो आपने मम्मी ने फ्राइंग पैन में तेल डाल दिया और ज्यादा देर तक गर्म कर लिया. जनरली ऑयल अगर फ्राइंग पैन में है तो फायर नहीं, इट नेवर कैचेस फायर. बट अगर ज्यादा देर तक रखेंगे तो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जाएगा, देन इट कैचेस फायर. Second example is kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. But if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch fire. So यहाँ आप देखो दो एग्जाम्पल दिया है, एक है केरोसिन और एक है वुड. इनको अगर हम रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो दे विल नेवर बर्न, दे विल नेवर कैच फायर. लेकिन हम केरोसिन को थोड़ा सा हीट भी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये जल जाएगा, इट विल कैच फायर. लेकिन उतना ही टेम्परेचर, उतना ही हीट अगर हम वुड को देंगे तो वुड थोड़ा सा भी नहीं जलेगा. सो दैट मीन्स द केरोसिन एंड द वुड हैज डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. Am I clear? Now what are inflammable substances? Those materials which have low ignition temperature and catch fire easily are termed as inflammable substances. आपने देखा होगा ट्रक में आपका जो पेट्रोल आता है उसके टैंक में क्या लिखा रहता है, हाईली इन्फ्लेमेबल. या फिर आपका जो इंडियन गैस वगैरह जो आता है उसमें क्या लिखा रहता है आपका, हाईली इन्फ्लेमेबल. ऐसा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि ये सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज हो जाए तो दे विल इमीडिएटली कैच फायर. सो दीज substances are called inflammable substances. Okay, so for example here I have given you the example of petrol. Similarly LPG, हम जो घर में यूज करते हैं गैस लीक हो जाने से क्यों आपका इलेक्ट्रिकल स्विच को बंद करने के लिए या फिर मैच स्टिक को जलाने के लिए पास में मोबाइल रखने के लिए क्यों मना किया जाता है, बिकॉज एलपीजी इज हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. Now we'll read about the matchsticks. Because matchstick contains at its top, its tip, it is having inflammable substance. So, and it is of common use to burn anything. So that's why we should know in details about the matchsticks. Since as matchsticks are in use long ago, Egyptians used small pieces of pine wood dipped in sulfur as match. पहले क्या होता था, इजिप्टियंस क्या करते थे, पाइन वुड का जो स्टिक है उसको डीप करते थे सल्फर को. ओके, बट दीज डेज मैच स्टिक्स आर लॉट सेफर. तो सल्फर तो आपका इनफ्लेमेबल है, ठीक है, तो अभी आजकल क्या किया जाता है, उसको थोड़ा ज्यादा सेफ कर दिया गया है. मॉडर्न मैच स्टिक्स आर मेड अप ऑफ with mixtures of antimony trisulfide and potassium chlorate with some glue and starch applied on the head of the match. Okay, so what is the difference between the matchstick used in old days and in the modern days? ओल्ड एज में आपका सल्फर यूज होता था मैचेस में,
एंड सल्फर में थोड़ा सा भी हीट लग जाएगा तो इट विल बर्न इमीडिएटली, इट विल कैच फायर, सो इट वाज नॉट सेफ। इसीलिए अभी आपका जो मैच स्टिक बनता है उसमें क्या है, क्या दिया गया है आपका, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड विथ सम ग्लू, स्टिक करने के लिए ग्लू एंड स्टार्च applied on the head of the match. Okay, the rubbing surface has powdered glass and some red phosphorus. हम देखो अब मैच बॉक्स का जो है दोनों साइड में क्या होता है, कुछ रेड कलर या ब्राउन कलर रॉफ surface is there, so that surfaces are meant for the rubbing the matchstick. रब करने के लिए क्या यूज होता है आपका, पाउडर्ड ग्लास टू मेक द सरफेस rough and some red phosphorus. You know, red phosphorus is also inflammable, but when it is mixed with glass, then its ignition temperature is lowered down. Okay. On striking match against rough surface, red phosphorus gets converted into white phosphorus and it reacts with potassium chloride to ignite antimony trisulfide and so the combustion takes place. तो हम देखो मैच स्टिक को हम जब रब करते हैं, मैच बॉक्स के जो दोनों साइड है, रब करने से क्या होता है, हम हमारा मैच बॉक्स में क्या है, रेड फास्फोरस है, तो रेड फास्फोरस से जब आपका मैच स्टिक जब घिस जाता है तब क्या होता है, रेड फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फास्फोरस में, और वो व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और उससे जो टेम्परेचर रिलीज होता है दैट टेम्परेचर बिकम्स द इग्निशन टेम्परेचर फॉर एंटीमनी ट्राइसल्फेट। ओके, सो उस इग्निशन टेम्परेचर के वजह से आपका एंटीमनी ट्राइसल्फेट जलने लगता है। सो दिस इज व्हाई द मैच स्टिक बर्न। Now, what are the basic requirements for the combustion to take place? Combustion के लिए, किसी भी चीज जलने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? So what are the things? First thing is fuel or combustible substance. किसी को तो जलाएंगे, कि जो चीज को आग लगना है that is called fuel. The thing that will catch fire is called fuel or combustible substance. तो आप यहाँ देख सकते हो, पहला चीज हमको चाहिए क्या, एक फ्यूल। ओके, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, सेकेंड चीज सबसे जरूरी है ऑक्सीजन और एयर। ओके, एयर मीन्स हम ऑक्सीजन को समझते हैं, या फिर एयर व्हिच कंटेन्स द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा बर्निंग में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए हीट, हमको चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस? फर्स्ट थिंग इज फ्यूल, देन ऑक्सीजन, देन heat. So if only oxygen is present, then also the fuel will not catch fire if the ignition temperature is not there. ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फ्यूल को ignition temperature मिल जाता है, then it catches fire. So this is very important. You have to remember what are the requirement for combustion. Okay. Now we will discuss about different measures to control the fire in different cases. Okay. So here we'll discuss different cases, like where to use the water to extinguish the fire, where to use carbon dioxide to extinguish the fire, like that. Okay. So let us first discuss the fire brigade stations, how they control the fire. In case of fire, fire brigades will extinguish the fire by sprinkling the water on the affected areas. The water will bring down the temperature below its ignition temperature. As a result,
fire will stop spreading. Water vapor also surround the combustible material, help in cutting off the supply of air, means oxygen, so the fire is extinguished. तो आपका फायर ब्रिगेड जब आपका कहीं भी आग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड्स को बुलाते हैं। आपको देख सकते हो ये गाड़ी जो है, दिस इज फायर ब्रिगेड का गाड़ी है। हाँ, ये गाड़ी में वो वाटर नियर बाय, अगर एरिया में वाटर है तो वहां से वाटर कलेक्ट करके सब स्प्रे करते हैं, या फिर वाटर वो इसमें ले आते हैं और लाकर उसको स्प्रिंकल करते हैं, जहां आग लगा है वहां पर स्प्रिंकल करते हैं। तो स्प्रिंकल करने से क्या होता है, आपका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिस चीज पर आग लगी हुई है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर देता है। कौन? वाटर। ओके, जिसकी वजह से वाटर, आपका फायर स्प्रेड होना बंद हो जाता है। उसके अलावा वाटर वेपर, जब वाटर जलता हुआ चीज के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर बनने लगता है और उस चीज के चारों तरफ वाटर वेपर कवर कर देता है, जिसके वजह से सराउंडिंग का या एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन उस आग के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसीलिए आग धीरे धीरे बुझने लगता है। क्योंकि आग जलने के लिए, आग स्प्रेड होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन को जब हमने कट ऑफ कर दिया तो हमारा फायर जो है कंट्रोल हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ द फायर ब्रिगेड कंट्रोल द फायर with the help of water. Okay, now here the second case is by using the fire extinguisher. Water is the most common fire extinguisher, no doubt, but it works only on things like wood, paper, etc. ठीक है? However, in case fire is caught on electrical things, then water, being good conductor of electricity, will destroy those equipments. Even water is not good in case of fire due to oil, petrol, etc. Okay, so आपका जब मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसमें आग लगा हुआ है, हम अगर वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, एक तो इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, दूसरा है जो आदमी वाटर स्प्रे कर रहा है उसके लिए खतरा होता है। ठीक है, और दूसरा, मान लो ऑयल की वजह से आपका आग लगी हुई है या फिर पेट्रोल की वजह से आग लगी हुई है, उस केस में भी हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। दिस एक्सटिंग्विशर कट ऑफ द एयर सप्लाई and thus brings down the temperature below the ignition temperature. As a result, fire gets extinguished. And moreover, it usually does not damage the electrical equipment. अभी देखो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम तो वाटर यूज नहीं कर सकते, बट वी हैव टू कंट्रोल द फायर। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्प्रे करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा आपके स्कूल में, डिफरेंट प्लेसेस में या फिर बड़े बड़े जगह पर, हम कहीं भी होटल में जाते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जगह जगह पर आपका फायर एक्सटिंग्विशर, आप नीचे डायग्राम देख सकते हो, इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लटका हुआ रहता है। और जब ये क्यों होता है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर फायर लग जाए, ठीक है, इफ एनीथिंग कैचेस फायर देन इमीडिएटली वी कैन स्प्रे द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करता है, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म से लेयर अराउंड द फायर, जो चीज जल रही है उसके चारों तरफ ये एक लेयर बना देता है, जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन उस फायर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता और आपका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है, जिसके वजह से धीरे धीरे फायर बुझने लगता है। दूसरी चीज, हम ऑयल या पेट्रोल के वजह से लगी हुई आग को भी वाटर से नहीं बुझाना चाहिए, उसको भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाना चाहिए, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी कम होता है वाटर से। तो अगर हम वाटर डालेंगे, वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वाटर नीचे चला जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा,
and it will continue burning. ये continuously burn होने लगेगा. इसीलिए ऑयल से लगी हुई फायर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. In that case, we have to spray carbon dioxide so that it will form a layer around the fire, burning fire, and cut off the supply of oxygen so that the ignition temperature will be low. I mean, it will be brought to the low level and the thing will or the fire will be controlled. ये तीसरा केस है, how to control the fire by using the blankets. If a person catches fire, then blanket can be used to extinguish the fire. The blanket does not allow the carbon dioxide released during burning to escape out and hence extinguish fire. अब देखो, अब जब किसी आदमी के शरीर पे आग लग गया, उसके कपड़े में आग लग गया, तो आप क्या करोगे? आपके क्या उसका कपड़ा उतारने के लिए आप वेट करोगे? नहीं, क्योंकि मान लो सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ है तो वो स्टिक कर जाएगा बॉडी में, उससे ज्यादा नुकसान होगा. तो इमीडिएटली आपके पास में अगर कोई ब्लैंकेट है तो उससे उसको पूरा अच्छी तरह रैप कर देना है. ब्लैंकेट ओढ़ देने से क्या होता है, जब आग जलता है, आग जलने के लिए क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए. और आग जलने के बाद क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो अभी हम ब्लैंकेट जब बॉडी के चारों तरफ हमने रैप कर दिया, ब्लैंकेट से कवर कर दिया, तब क्या होगा? जो जलता हुआ आग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर नहीं जा सकता. और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए फायर एक्सटिंग्विशर. अभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ब्लैंकेट के अंदर रह के क्या करेगा? आपका जो फायर है, आग है, उसको बुझा देगा. और ऊपर से आपका ब्लैंकेट कट ऑफ कर देगा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सप्लाई को भी कट ऑफ कर देगा, जिसके वजह से आग स्प्रेड होने का भी कोई खतरा नहीं है, कोई चांस भी नहीं है. सो दिस इज अनदर द कॉमन वे. और आपका घर में अगर कुछ हो जाए तो हम तो फायर एक्सटिंग्विशर घर में रखते नहीं है. और उस वक्त हम क्या करेंगे? इमीडिएटली हम अगर फायर ब्रिगेड के लिए वेट करेंगे तो उसमें तब तक काफी खतरा हो चुका होगा, काफी बॉडी का हिस्सा जल चुका होगा. इसीलिए दिस इज द बेस्ट वे टू सेव समबडी इफ he or she catches fire. So this is another case, that is forest fire, which is very difficult to control. In summer season, when temperature rises too high, then the region having dry grasses catches the fire. This fire spreads rapidly from grasses to trees and eventually entire forest is on fire. And it is difficult to manage such fire. आप इतना पानी कहाँ से लाओगे कि पूरा फॉरेस्ट को बुझा सको? क्योंकि वो तो स्प्रेड होता जाएगा, जो भी ड्राई है उसको धीरे धीरे स्प्रेड होता जाएगा. और अगर उसके साथ अगर हवा ने साथ दे दिया तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाएगा. आपने अभी सुना होगा न्यूज में कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का फॉरेस्ट फायर हुआ था. ठीक है, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर. Okay, so this is the end of this session. So for your next topic, you have to attend the second session, and in that session we'll discuss about the types of combustion, flame, structure of flame, then fuel, ideal fuel, fuel efficiency, harmful effects of burning fuels. Okay, thank you.